Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. अब ये स्टोरी एक थाईलैंड की जगह फुकेट बीच की है. Though she has won a number of awards, her parents have her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. और उसके फादर नहीं चाहते थे कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर फेमस हो जाए. Why do you think they took that decision? Now here is a story from Thailand. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Tilly Smith 10 साल की स्कूल की बच्ची है. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. उसके पेरेंट्स में पेनी और कॉलिन स्मिथ हैं. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. बहुत भयानक लहरें, सुनामी की लहरें उनके रास्ते में आई, यानी उन्होंने सुनामी को फेस किया. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. और सुबह ही 26 दिसंबर 2004 को उन्होंने बहुत भयानक अर्थक्वेक और सुनामी का सामना किया. Who was Tilly Smith? A 10-year-old schoolgirl. Why did they come to Thailand to celebrate Christmas? What happened on 26 December 2004? A massive earthquake triggered deadly tsunami waves. अर्थक्वेक अगर जब पानी में समुद्र में आ जाए तो वो सुनामी कहलाता है. बहुत ज़्यादा हलचल होती है पानी में और लहरें उठती हैं जिसका तेज़ बहाव घर और बड़ी मिक़दार में, बड़ी तादाद में लोगों को, पेड़ पौधे, दरख्त सब बह जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड सुनामी. फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड्स विच मीन डेंजरस, डेडली एंड ह्यूज means massive. Passage number 6. The water was swelling and kept coming in. पानी का बहाव बढ़ रहा था और पानी अंदर आने लगा था. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. बीच जो है, तट जो है, किनारा, वो कम से कम छोटा सा छोटा होता जा रहा था, यानी पानी तेज़ बहाव के साथ आगे बढ़ रहा था. I didn't know what was happening. मुझे पता ही नहीं था कि क्या होने जा रहा था. But Tilly Smith sensed that something was wrong. लेकिन टिली स्मिथ को एहसास हो रहा था कि कुछ तो डेंजरस हो रहा है. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand. और उसे ज्योग्राफी का एक लेसन याद आया जो कि उसने पढ़ा था. She flew out to Thailand with her family. Tilly saw the sea slowly rise. टिली ने देखा कि पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था, ऊपर की ओर उठ रहा था. And start to form, और उससे फॉर्म झाग से बनने लगे थे. Bubble and form whirlpools. उसमें whirlpools यानी सर्कुलर मूव्स होने लगे थे, भंवर से बन रहे थे. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. उसे याद आया कि उसे क्लास में दिखाया गया था एक वीडियो जिसमें कुछ ऐसा ही नज़ारा था. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. और उस ज्योग्राफी लेसन में उन्हें बताया गया था कि कैसे अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स और वोल्केनोज सुनामी का सबब बनते हैं. What did Penny Smith see on the beach? Now these are the questions from this passage. The sea water swelling and the bench getting smaller. पेनी ने देखा कि सी वाटर, पानी ऊपर की ओर बढ़ रहा है और तेज़ बहाव के साथ किनारा जो है छोटा से छोटा होता चला जा रहा है. How could Tilly Smith guess about tsunami with the help of a geography lesson?
What was the video about that was shown to Tilly Smith by her teacher? A tsunami, वो वीडियो था एक सुनामी के बारे में. The video was about a tsunami that had hit the Hawaiian Islands. Find the opposite words of the following words from the passage. After, इसका opposite है before, forgot. The opposite word of this word is remembered. Now, next passage. Tilly started to scream at her family to get off the beach. और टिली जोर से चिल्लाए ताकि उसकी फैमिली के मेंबर दूर हट जाएं और अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाएं. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical. Said her mother Penny. उसकी मदर पैनी ने बताया कि टिली हिस्टेरिकल होने लगी थी, यानी उसे बहुत ज़्यादा शौक सा हो रहा था और वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी. काफ़ी घबराहट में वो आ गई थी. और उसकी मदर ने बताया कि टिली स्मिथ चीख रही थी. हिस्टेरिकल मीन्स टू लाफ और टू क्राई, यानी आवाज़ें निकालना किसी को इशारा करने के लिए कि वो अपनी जान बचाएं, वहाँ से किसी तरह करके हट जाएं. Said her mother Penny, I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. मुझे सुनामी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मदर पैनी बता रही है. लेकिन जब उन्होंने अपनी बच्ची को टिली को बहुत ज़्यादा फ्राइटन घबराते हुए देखा, चीखते हुए देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ डेंजरस होने वाला है. बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन आई थॉट समथिंग सीरियस must be going on. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. वहाँ पर कुछ टूरिस्ट भी आए हुए थे, उन्होंने भी उस बीच से दूर हटकर अपनी जान बचाई. Then it was as if the entire sea had come out after them. लेकिन जैसे ही वो अपनी जान बचाने के लिए बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एंटायर सी, सारा पानी समुंदर का वो बह जाने वाला है. आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और वो चिल्ला रही थी मदर पैनी और सभी को दौड़ने के लिए कह रही थी. द फैमिली टुक रेफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. द बिल्डिंग withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. अगर वो बीच पर ही रुके रहते तो वो अपनी जान गंवा बैठते, लेकिन वो वहाँ से चले आए थे. The Smiths later met other tourists who had lost entire families. बाद में उनकी मुलाकात कुछ टूरिस्ट से हुई, सैलानियों से हुई, जिन्होंने बताया कि उनकी फैमिलीज़ के बाकी जो मेंबर्स हैं वो सब बह गए थे. थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन. और उन सभी ने टिली का शुक्रिया अदा किया और उसके ज्योग्राफी लेसन के लिए भी शुक्रिया अदा किया. उसकी हेल्प से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, ऐसा उन्हें लग रहा था. दे हैड बीन फॉरवार्न्ड, और उनको फॉरवार्न कर दिया गया था, पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि वहाँ से चले जाना चाहिए. टिली वेंट बैक टू हर स्कूल in England and told her classmates her terrifying tale. और टिली ने अब स्कूल जाकर अपने साथियों को इस टेरिफाइंग सिचुएशन के बारे में बताया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. Why did Tilly started screaming? To get her family off the bench. ताकि उसकी फैमिली मेंबर्स बीच से हट जाएं. Who was Penny and what did she not know? She was Tilly's mother. She did not know about tsunami. Penny टिली की मदर थी जिन्हें सुनामी के बारे में कुछ पता नहीं था. Why did the tourists thank Tilly and her geography lesson? Because they had been forewarned. उनको पहले ही अलर्ट कर दिया गया. Find from the passage the words which mean story and grave. So the words are respectively tell and serious.
Now these are the comprehension check questions you can learn. Passage number 8. Look carefully at the picture of the boy and his dog. The picture, a boy with a dog in his lap, and try to describe the things that you see using these words and phrases. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, इससे पहले कि जायंट यानी बहुत ह्यूज मैसिव वेव्स लहरें टकराती इंडिया की कोस्ट से किनारे से और श्रीलंका के किनारे से, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. कुछ जंगली और घरेलू जानवरों को एहसास हो गया था कि कुछ होने वाला है. समथिंग was about to happen. They fled to safety और अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़े. According to eyewitness accounts, यानी जिन्होंने आंखों देखा हाल बयान किया, उनका कहना है elephants screamed and ran for higher ground. हाथियों ने चिंघाड़ना शुरू कर दिया था और वो अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई की ओर भागने लगे. Dogs refused to go outdoors और डॉग्स ने बाहर जाना बंद कर दिया. फ्लेमिंगोज बर्ड्स, सी बर्ड्स, फ्लेमिंगोज राजहंस, दे आर कॉल्ड ऑल्सो. फ्लेमिंगोज अबैंडन देयर लॉन्ग लाइंग ब्रीडिंग एरियाज और फ्लेमिंगोज ने अपने ब्रीडिंग एरियाज उनको भी छोड़ दिया. वहाँ से जो नीचे ज़मीन के पास में ही बिल्कुल समुंदर के पास में बनाए जाते हैं, उन जगहों को भी छोड़ दिया क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि यहाँ कुछ होने वाला है. समथिंग वाज अबाउट टू हैपन. एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट. और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कोई पनाह ली और दोबारा उन्हें देखा नहीं गया. हु गॉट द इंडिकेशन ऑफ द अप्रोचिंग सुनामी वेयर इन टाइम? वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. जंगली और डोमेस्टिक घरेलू जानवरों को एहसास हो गया था कि सुनामी आने वाली है. What did the elephants do when they sensed the tsunami? They screamed. चिल्लाए जोर से, उन्होंने चिंघाड़ना शुरू कर दिया. They screamed and ran for higher grounds. How did the dogs behave when they sensed the tsunami? They refused to go outdoors. Find from the passage the words which mean very large and left. Respectively, the answers are giant and abandoned.